Okay. Okay, so I see few people who have joined the live. Hi, just give me a thumbs up if you can hear me. Uh, I've just come from the office. Okay, Nish. Okay, great. So I've just come from the office. So mind me if I'm wearing this formal and all. But आज एक वजह भी है फॉर्मल पहनने की, क्योंकि आज हम पैसे की बात करने वाले हैं। और वैसे तो आपको पता ही है कि निर्मला सीतारमन ने बात की ही थी पैसे की। 20 लाख पैकेज जो उन्होंने अनाउंस किया था, तो उसमें से हम 2 रुपीज पीपल को क्या मिला? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम यहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेट्स नॉट मेक दिस अ पॉलिटिकल डिबेट, रादर लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि हम 2 रुपीज पीपल के लिए एक्चुअल में इस कोरोना काल में क्या है, व्हाट वी कैन एक्चुअली डू। अच्छा, उससे पहले लेट मी टेल यू फ्यू डिटेल्स ऑल्सो, बट here is my guest who is already there, so let me invite you that guest. Her name is Khyati Mashru Vasani और ये फाउंडर एंड चीफ फाइनेंशियल कोच हैं प्लांट रिच एंड वामा प्लांट रिच LLP से। So let's invite her. So I have sent her the invitation, so I'm just waiting for her. Hi Vaibhav. So yeah, hi Khyati. Hi Suryanshi, how are you? I'm great, I'm great. So हम लोग भी यही बात कर रहे थे कि कोरोना काल में किस तरह से हम 2 रुपीज पीपल अपने पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि 20 लाख करोड़ तो हमारे पास नहीं है, बट एटलीस्ट वी हैव फ्यू मनी विच वी रियली वांट टू सेव। करेक्ट, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद जी ने भी ज्वाइन किया है, विशु अरोड़ा ने भी ज्वाइन किया है, मुकुंद ने भी ज्वाइन किया है, और वैभव ने भी ज्वाइन किया है। कुछ इसमें से जर्नलिस्ट भी हैं और कुछ इसमें से ऐसे हैं जो शूटर भी हैं। तुषार बैरेट हैज जॉइंड अस, ही वर्क्स इन फेसबुक। हाय तुषार, एंड वी लव यू। सो ओके, so let's hi begin. everyone, it's pleasure being with all of you. And Suryanshi, thanks for this wonderful opportunity that I'm able to connect with so many people and inviting me over here. Yeah, and we have a comedian also on live joining. His name is गुप्ता जी, बुलाती हूँ मैं सर उनको, बहुत ही बढ़िया कॉमेडी करते हैं। रवि गुप्ता उनका नाम है। तो ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात ये करेंगे ख्याति के, ठीक है, हम शेयर मार्केट्स की भी बात करेंगे, हम लिक्विडिटी की भी बात करेंगे, वो बड़े बड़े टर्म्स हम यूज करेंगे, लेकिन लेट्स फर्स्ट ब्रेक डाउन दिस इकोनॉमिकल इशू फॉर द कॉमन मैन। अगर एक इंसान को जो है उसे पैसे बचाने हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूं या कोई और है जो अभी काम कर रहा है और जो भी उसके पास पैसे है, वो उसको कैसे बचा सकता है? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट आर द सेविंग प्लान्स दैट वी हैव abhi at present. Well, so saving plans, if you look at the options, there are host of options. I'm sure ये simple सी बात को जब आप Google करेंगे तो there'll be so many things that are there that you'll actually get confused that what should I do and what should you not do. But one thing is for sure, when it comes to your own finances, don't be your own doctor. Like, don't self-prescribe yourself and say that, okay, this is what I want to do. But it's better to any advisor that you have, take an advice from them. Ideally, what we suggest is that you should be doing your own financial planning, and you plan your investments and saving options according to your goals, according to your age, according to your risk appetite, the amount of risk that you are able to take, and based on that you plan your savings. So सबसे पहले तो ये decide कर लीजिए कि जाना कहाँ है। बहुत बार when it comes to investments, हमें यही नहीं पता होता है कि डेस्टिनेशन क्या है। So first we need to identify the destination, and then we can go on choosing the right vehicles, which can be equities, which can be debt, which can be gold, which can be real estate, 4 major asset classes. और फिर ये asset classes में अगर आप equity choose करते हैं तो best way is to go through a mutual fund route. Second best thing is आप stock की SIPs शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी 5 कंपनीज, या मे बी यू आर अ कंज्यूमर ऑफ दैट 5 कंपनीज. फॉर एग्जांपल Reliance, like we all use Jio data services and we all use Reliance, so you know that as a company this is going to do good in time to come. So maybe you can do a stock SIP कि हर महीने आपने Reliance के 2 shares 3 shares इकट्ठा करना शुरू किया, and over a period of time you'll accumulate good amount of shares through bonuses, dividends, etc. Like, you know, for example, HDFC Bank, it's a bank which everybody uses it. And post this entire thing, banks with good digitization options are going to be in demand, because people would not like to go to banks, but they would want to do things with on their fingertips.
So such you can look at such kind of stocks. I'm just giving you an example as to how to choose your own stocks, even if you're doing it. So equities में आप ये दो options use कर सकते हैं. When it comes to debt, debt is not something where you should be taking any kind of risk. So best is go for PPF, where you have a fixed amount of money, fixed amount of interest coming to you. If you are employed, you have an EPF. Voluntarily उनका contribution आप बढ़ा सकते हो, because वो सब आपके पास fixed return है और tax free भी है. After that, you can look at debt mutual funds. Some part of portfolio you can also look at having it in gold. Sovereign gold bonds and gold ETF are the better options to invest in gold. And then, of course, last is a real estate, because it's relatively illiquid kind of a investment option. But yes, go on. Sorry. हाँ, सो यू हैव गिवन अस मल्टीपल ऑप्शंस जो हम लोग कर सकते हैं. कुछ हम लोग ब्रेक डाउन इसमें करेंगे, जैसे कुछ ऐसे है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं म्यूचुअल फंड में ज्यादा भरोसा करती हूँ, या कभी कभार मुझे डाउट भी हो जाता है बिकॉज पता नहीं क्या हो रहा है मार्केट में, स्पेशली अगर उसमें से शेयर मार्केट जुड़ा हो तो थोड़ा सा एक टेंशन हो जाती है बहुत ज्यादा. तो अगर हाँ, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आती है कि रियल एस्टेट में अब अगर इन्वेस्टमेंट करें तो लॉकडाउन के टाइम पे आई थिंक इट वोंट बी अ वेरी वायबल ऑप्शन. तो अब जैसे लॉकडाउन है और स्थितियां ऐसी है कि कोरोना वायरस जैसी स्थिति है, तो अगर बैंक को कोई भी हम जैसे लोग कंज्यूमर्स जो अगर अप्रोच करें, तो बैंक को हम क्या बोले कि ये हमें दीजिए, तो इससे हम सेविंग्स अपनी अच्छी कर सकते हैं. क्योंकि म्यूचुअल फंड पे आई डोंट नो, मतलब वेदर शुड बी ट्रस्ट ऑन म्यूचुअल फंड अभी इस टाइम पे. 100% इट इज. एक बार एक ऐसा कुछ रिसेंट, आई एम श्योर आप सबने फ्रैंकलिन के बारे में सुना होगा, बट दिस इज वन सच थिंग दैट हैज हैपेंड. एंड अगर उसको भी आप अच्छे से स्टडी करें डिटेल में, तो इट इज वॉट एवर इज हैपेंड, इट्स गुड फॉर द इट्स फॉर द इन्वेस्टर्स बेनिफिट इन द लॉन्गर रन. So there is absolutely nothing that you should not be trusting mutual funds. In fact, वो एक सबसे बेस्ट तरीका है that you can enter at a young age, have a long horizon. छोटे छोटे अमाउंट्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ. बिकॉज इक्विटी ही एक ऐसा एसेट क्लास है, अभी खैर इक्विटी के रिटर्न्स कम है बिकॉज मार्केट्स आर लाइक दिस, बट इक्विटी ही एक ऐसा एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है. अच्छा. एंड यू हैव टू लुक फॉर ऑप्शंस व्हिच गिव यू मोर रिटर्न देन इन्फ्लेशन. Only then actually your money is growing, otherwise it's just keeping pace with inflation. बिल्कुल बिल्कुल. सो इक्विटी में क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, मतलब लेट्स ब्रेक इट डाउन इन अ वेरी लेमैन टर्म अगर हम करें. सो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, वन इज म्यूचुअल फंड दैट यू कैन गो फॉर. म्यूचुअल फंड भी समझ नहीं आ रहा है कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, क्या है, इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट गो फॉर अ नॉर्मल इंडेक्स फंड. It's like index fund is exactly a replica of the index. Like Sensex has 30 stocks, Nifty has 50 stocks, so it's replica of that 50 stocks. All you need to do is just enter index fund. Index जितना परसेंटेज से ग्रो होगा, आपका उतना ही परसेंटेज से आपका फंड भी ग्रो होगा. So you can look for Nifty 50 index, you can look for BSE Sensex index. So these two are the best options if you don't understand what you need to do when it comes to mutual fund. Second option, as I told you, you can go in for equity SIPs. So आपका जहां पर भी डीमैट अकाउंट हो, ये फैसिलिटी उपलब्ध होती है. You can just tell them that these are 2 or 3 stocks that I have shortlisted, और इसमें मुझे स्टॉक SIP शुरू करनी है. Let's say you are planning 5,000 rupees a month. You can just split it between 2 stocks, 2,500, 2,500, and you can just go on buying those stocks over a period of time. ओके. सो अभी स्टॉक्स की बात हो ही रही है, तो लेट्स हैव फ्यू क्वेश्चंस आल्सो. अगर आप लोग जो देख रहे हैं, इफ यू आल्सो हैव एनी क्वेश्चन, तो ख्याति इज देयर टू हेल्प यू विद दैट. और ऐसा मौका कहाँ मिलेगा कि चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर जो है खुद होंगे हमारे पास, एंड यू जस्ट हैव टू आस्क द क्वेश्चन एंड यू विल गेट द आंसर. तो हमने जब ये लाइव की अनाउंसमेंट की थी ख्याति, तो हमें कुछ क्वेश्चंस मिले थे, जिसमें से ये था कि एक ने ये सवाल पूछा था, हिज नेम वाज शुभम. तो उन्होंने ये पूछा था कि कंपनी डीलिस्ट हो रही है कुछ कंपनीज, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग उन्होंने पूछा था. सो सबसे पहले तो आपको इस कंपनी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये डीलिस्ट किस वजह से हो रही है. If their business is not really working well and you don't expect them to do good in future, it makes sense कि आप अपना पैसा निकाल लीजिए. ओके, बिकॉज एक बार डीलिस्ट हो जाती है कंपनी, फिर आपको नहीं पता है कि वो लिस्ट दोबारा कब होगी.
and when you will be able to make the most of your money, or when you will be able to pull out your money. So if you're not sure about the company, you just pull out the money. If you're sure that ये जो delisting हो रहा है, that is for good purpose and it will be relisted after a while, then maybe you can think of keeping it. But don't just think about that, also think about opportunity cost. आज अगर आपके 50,000 रुपए, लाख रुपए वहां पर ब्लॉक्ड रहते हैं, कंपनी तो लिस्ट होगी तब होगी, बट एट द सेम टाइम विद दैट मनी आपने 2-3-4 साल की जो अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, उसका भी कॉस्ट आपको कंसिडर करना चाहिए. ओके ओके. सो देयर इज अनदर क्वेश्चन कि SBI कार्ड के बारे में जानना है. ये 755 पर लिस्टेड हुआ था. मुझे एक लॉट मिला था, अभी ये 500 पर ट्रेंड कर रहा था. मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको होल्ड करूँ या एवरेज करूँ या लॉस बुक कर लूँ. आई एम अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप है तो यू शुड कीप SBI कार्ड्स फॉर श्योर. बिकॉज अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो इन दिस लॉकडाउन पीरियड पीपल हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड्स. आगे चल के बहुत सारे जॉब में हम पे कट्स देखेंगे, जॉब लॉसेस देखेंगे. दिस आर गोना बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन. So that time people are going to depend on their credit card, which means कि ये कंपनी को ज्यादा फायदा होगा. They will report good corporate numbers and the stock prices will go up. So if you are a long-term investor and if you're sure about the company, it makes sense कि आप इसे और ज्यादा खरीदे, पर एक साथ ना खरीदे because markets अभी बहुत ज्यादा volatile है. उसको example, if you want to average it with 50,000 rupees, every time the price drops, park 10,000. Okay, okay. Because you're living in a market which is very choppy and volatile. Had we known कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा तो हम बोल सकते थे कि चलो ये रेट पे एवरेज करते हैं, बट वन कैन नॉट टाइम द मार्केट. तो जैसे ये इसी पे मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला 10,000 रुपए करें, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या करनी चाहिए अगर इस टाइम पे शेयर पे अगर पैसा लगाना चाहता है इंसान, स्पेशली जब यहाँ पे कोविड-19 है और कुछ नहीं पता कौन सी कंपनी कब डूब रही है, कुछ नहीं पता, मतलब बैंक्रप्सी के इतने सारे होने वाले केसेस. तो व्हाट डू यू सजेस्ट इन दैट केस? आई वुड सजेस्ट हर इंसान को सबसे पहले तो अपनी लिक्विडिटी पे ध्यान रखना चाहिए. ऐसे टाइम पे लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डोंट गेट इनटू दैट फोमो थिंग, लाइक अ फियर ऑफ मिसिंग आउट कि आई वांट टू इन्वेस्ट अदरवाइज आई विल मिस द बस. कीप इनफ लिक्विडिटी. आपके 6 मंथ का एक्सपेंसेस आपके पास होना चाहिए into something which you can easily just liquidate if need be. उसके बाद आपके पास जो amount बचता है that you can look at investing in a stock market. But ऐसे समय पे अगर आप enter कर रहे हैं तो you need to keep in mind that you have to have a long term horizon. So stay invested for at least 5 to 7 years. अगर वो preparedness है तब भी जाकर आपको equity में invest करना चाहिए. Equity is not for short term. I mean it is ideal कि आप long term investor बनो तो you will get better returns. ओके ओके. सो एक और सवाल आया है कि अभी फार्मा सेक्टर में कुछ स्मॉल कैप के शेयर ऐसे हैं जो अपने साल के परफॉर्मेंस से भी अच्छा कर रहे हैं. यदि ये महामारी हटती है तो इन स्मॉल कैप शेयर का क्या होगा? So see, of course, हर सेक्टर की एक टाइम आता है. Right now the time is pharma sector. So that is the reason we are seeing that pharma company stocks are growing. बट एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि इसके बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी, कोरोना के बाद भी, हेल्थ को लेकर हम सब ज्यादा अवेयर हो जाएंगे. पीपल वुड वांट टू स्पेंड मोर ऑन हेल्थ केयर, वेलनेस. सो आई फील दैट फार्मा कंपनीज आर नॉट रियली गोइंग टू गो डाउन. इट्स अ डिफेंसिव सेक्टर. फार्मा एंड FMCG, वो कोई भी मार्केट में हमेशा ये 2 सेक्टर्स हैं जो चलने ही वाले. दिस इज लाइक एसेंशियल थिंग्स. So of course अभी बहुत सारी कंपनीज की रोज न्यूज आती रहती है that they have succeeded or they're trying to make a medication for coronavirus, and that is the reason the prices keep going up. But in the end we don't really know which company is going to succeed on kiska end vaccine is going to actually get launched. We don't know. So ideally don't just look at the price point but look at the fundamentals of the company. जो भी small cap company की आप बात कर रहे हैं, उसका बैलेंस शीट देखे, उसका बिजनेस देखे, उसका ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखे. इफ यू कन्विंस्ड विद ऑल दैट देन यू कैन कंटिन्यू हैविंग इट इन योर पोर्टफोलियो. हमने स्टॉक मार्केट की बात की, हमने लिक्विडिटी की अभी बात
थोड़ी बहुत ही छेड़ी है। मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि अब जैसे कोरोना वायरस का इशू है और जॉब लॉसेस हो सकते हैं, तो अब आगे अगर कोई कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहे या कोई एक किस तरह का काम वो कर सकता है, स्पेशली क्योंकि इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी है, कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है। स्पेशली ये कह सकते हैं कि हाँ, एक इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी जिसका अभी तो बहुत मतलब नुकसान हो रहा है, और हो सकता है कि 1 साल तो उनको बेयर ही करना पड़े ये नुकसान। Correct. लेकिन उसके अलावा कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लगते हैं जहाँ पे जॉब करना सेफ रहेगा? Suryanshi, I've lost your voice. Are you able to hear me? हाँ, आई एम एबल टू हियर यू। कैन यू हियर मी? Hello. हेलो हेलो। Okay, I can hear you now. Yeah, I had lost your voice in between. Okay. Sectors. Now can you hear me? Yeah. I can So hear I was asking. So I was discussing about what kind of sectors people can actually go and start looking for work, because कई बार ऐसा अभी होगा कि लोगों की जॉब जाएंगी, तो ऐसे में आई नो कि थोड़ा नेचर स्किल और ये सब बहुत मैटर करेगा, बट अगर एक मोटे तौर पे देखा जाए तो कौन से सेक्टर्स अभी काम करने के लिए सेफ हैं, एक्सेप्ट हॉस्पिटैलिटी, बिकॉज वी नो कि हॉस्पिटैलिटी के इश्यूज अभी बहुत ज्यादा होंगे। Right. तरुण जी ने बोला आईटी सेक्टर। या डेफिनेटली, मतलब ये एक ऐसा टाइम है जो हम सबको पता चल गया कि डिजिटाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर डिजिटाइजेशन हमारी लाइफ में नहीं होता तो हमारे लिए ये पूरा लॉकडाउन का समय गुजारना शायद बहुत मुश्किल हो जाता। सो एनीथिंग टू डू विद डिजिटाइजेशन आई फील विल डू एक्सट्रीमली गुड। नॉट जस्ट डिजिटाइजेशन बट डिजिटाइजेशन को लेकर जो ट्रेनिंग्स होते हैं, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं भारत की बात कर लूं तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो डिजिटाइजेशन का इम्पोर्टेंस तो समझ गए, बट उन चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है वो नहीं जानते। बहुत सारी कंपनीज है जो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी टू हाउ टू यूज डिजिटाइजेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। So training space when it comes to digitization, there also we will see a huge growth. इसी का एक लिस्टेड कंपनी है NIIT, आप चेक कर सकते हैं। मुझे इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे आगे चल के, बिकॉज दे आर इनटू ट्रेनिंग्स फॉर IT। सो एक ये सेक्टर देखा जा सकता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट सेक्टर दैट आई सी इज हेल्थ एंड वेलनेस। Okay. Because जैसे मैंने बताया कि people are now becoming more aware about their health and they suddenly want to pay all the attention in the world to their health, जो अभी तक हम ignore करते आए हैं। So that is one sector where we can look at doing something. And third, I feel anything to do with like Make in India. So anything where to do with consumption or service related industry or even manufacturing, मेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स, आई थिंक उसको भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। सो आई थिंक दीज आर द 3 सेक्टर्स दैट कैन बी लुक्ड एट। ओके, सो हमने एक नॉर्मल जो होता है, जो सर्विस गोइंग क्लास है, उसके बारे में हमने बात की, किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम। एंड उसके बाद और भी हमने ऑप्शंस डिस्कस किए, जिसमें रियल एस्टेट भी आया, ऑल्दो अभी कोरोना वायरस की वजह से उसमें इशू है। गोल्ड का हमने बात की। लेकिन अब हम उन पे जाते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जिन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अभी कदम ही रखा है, या फिर उन्होंने काफी टाइम तक कदम रखा लेकिन अब कोरोना वायरस से इफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में उनके पास क्या ऑप्शन है अपने कंपनी को बचाने के लिए? So see, first thing is 2020, it's just going to be, I feel it's going to be about survival of a business. अगर आपका business survive कर गया तो भी बहुत बड़ी बात है। It's not about making profit or making money or anything like that. But first thing that I think as a small scale industry, what possibly can be done is cut down the cost where you don't really need to, मतलब जहाँ spend करने की जरूरत नहीं है उस पर बिल्कुल spend नहीं करे। आपका जो recurring cost है उसको कम करे। हो सके तो ऐसी टेक्नोलॉजी में पैसा डाले जहाँ पे मतलब if you have a team of 20 people, वही लोग मिलके 30 लोगों का काम कर सके just because you're adapting a new technology. That's when you will be able to create more demand, yeah, maybe continue having a demand in your businesses. So digitize your business and reduce everything where the spends are not required,
एंड स्पेशली आपके रिकरिंग एक्सपेंस उसको हो सके उतना कम करे, दैट विल रियली हेल्प. इफ यू आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ ऑफिस या रेंटल आप भर रहे, वर्क फ्रॉम होम इज अ न्यू नॉर्म. You can digitize your business and have everyone work from home, so there'll be a huge saving. So this is just as an example. True. अच्छा, बैंक इन लोगों को क्या क्या ऑप्शन दे सकती है? Now, of course, government has said that they are coming up with a lot of loan options also, collateral free loans दिए जाएंगे. So bank can definitely give them these kind of options जहाँ पर ये amount ले सकते हैं, और ये EMIs भी instant शुरू नहीं होने वाली है. They're going to start after a year. तो इसका भी benefit लिया जा सकता है. Okay. So that is for survival of the business. ओके, सो यहाँ पे एक सवाल पूछा है तरुण चौबे ने, जिन्होंने कहा है कि डू यू थिंक मेक इन इंडिया विल सर्वाइव टिल कोविड सिचुएशन एंड्स, या मेक इन, इन्होंने लिखा, आई थिंक मेक इन इंडिया ये लिखना चाह रहे थे, बट इन्होंने सिर्फ लिखा है मेक इन विल सर्वाइव टिल कोविड सिचुएशन एंड्स. Not just situation ends, but I think post COVID we have understood the importance of doing things domestically. And India as an economy, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी से अगर मैं कंपेयर करूँ, 30% अपनी इकोनॉमी जो है वो डिस्क्रिशनरी चीजों पे स्पेंड करती है, बट 70% ऑफ द स्पेंड्स इन इंडिया हैपेंस ऑन एसेंशियल. और वही अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो इट्स वाइस वर्सा. पीपल 70% दे स्पेंड ऑन डिस्क्रिशनरी एंड 30% इज ऑन एसेंशियल. सो इंडियन इकोनॉमी इज इंसुलेटेड. वी विल कम आउट ऑफ इट वेरी सून. And now we have understood the importance of local things, manufacturing and consuming both locally. So I feel definitely not just survive, but it will flourish after this. Okay. So अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि लड़कियां जो हैं किस तरह से इस सिचुएशन में अपने आप को इक्विप कर सकती हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होगा कि वर्क फ्रॉम होम करने को मिलेगा, लेकिन वी ऑल नो कि कभी कभी वर्क फ्रॉम होम में देयर स्टिल अ लॉट ऑफ पैट्रियार्कल सेटअप वेयर यू हैव टू वर्क at home also and from home also. True. So इस सिचुएशन में what are the options that you see कि गर्ल्स जो है ऑप्ट कर सकती हैं? So I think, I am also going through what you have said, and in a situation like this, you have to take care of both responsibilities. You don't really have much choice. But only thing is, maybe set up the expectations right with the stakeholders, with your family, that this is something which I'm doing, and this is going to need X amount of hours of my day. And उसके अलावा जो टाइम मेरे पास बचेगा उसमें this is how I'm going to take care of my responsibilities. So I think just setting expectations right and communicating, उस अगर हम इतना कर सके तो हम दोनों को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे. तो दीपक सिंह ने भी हमें ज्वाइन किया. ही इज फ्रॉम एनडीटीवी, ये यहाँ पे काम करते हैं, पांडे. सो अच्छा ख्याति, अब मुझे आपसे ये जानना था कि हमने अच्छा ओके, देयर इज वन क्वेश्चन ऑल्सो. अमित राजपूत ने पूछा है, व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर? इज प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज विल गो अप और डाउन? एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर मैं बोलूँ फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, इट्स गोना बी गुड सेक्टर. जैसे हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, वो सेक्टर में भी मुझे लग रहा है कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी. प्राइस ऑफ द कमोडिटीज विल गो अप और डाउन. Essential commodities I feel will remain at the same pace because government will not really allow hiking the prices in the near future, because वो होता है तो inflation immediately आपका ऊपर चला जाएगा. I don't think in the near future it will go up, but post this entire period or maybe after 2020, definitely yes. Because India is again a growing economy. We're moving towards being a developed economy. So the prices have to go up. There will be a temporary situation where things will be kept under control till we all get out of this COVID thing. ओके, सो यहाँ पर एक रोहित उपाध्याय हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं. इन्होंने सवाल पूछा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीपल आर आस्किंग, वेयर टू कीप आवर हार्ड अर्न मनी? Neither the banks are safe nor any investment is safe. Seeing the scenario, your suggestion is required. I think we have already discussed, but I think it would be a good thing that Sure. we if you're looking for an absolute safety, RBI ने नया bond issue release किया है. 7.75% fixed return. RBI is issuing bonds. You can go in for something like that. Where if you're looking for a complete safety, 7.75 is a decent return. Of course, it's taxable. You can look at PPF. Again, it's a government guarantee PPF.
एज आई सेड ईपीएफ को आप देख सकते हैं. Look at NSC, National Saving Certificate, post office schemes. So if you are a very conservative investor और आपको बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है तो आप ये इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं, बट रिस्क लोगे तभी जाके रिटर्न आएगा. So that is the reason हमने सबसे पहले बात की एसेट एलोकेशन की. एवरी एसेट प्लेज इट्स रोल. सो आपका थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह होना चाहिए, इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में. यू शुड हैव स्मॉल बिट्स एंड पीसेस over a period of years into all the asset classes. ओके तो एक सवाल मुझे आपसे पूछ रहा था कि बीच में बहुत ज्यादा मर्जिंग ऑफ बैंक्स हो रहा था. यस बैंक का भी एक केस हुआ था और उससे पहले महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा फ्रॉड निकला था बैंक के वहां पे. तो इस वजह से लोगों के अंदर जो है ना मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है. तो टेल अस समथिंग अबाउट दिस होल सिनेरियो अबाउट बैंक्स एंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दैट इकोनॉमिक स्ट्रेटा. So I feel, see, it is when you talk about, I know which bank you are talking about, but moreover, that was a cooperative bank, okay? So Yes Bank, now we know कि Yes Bank में जो issue हुआ, government took over everything. Yes Bank पे moratorium लग गया and then again things started. You know, temporary halt tha, you couldn't withdraw, take the money out, but hardly for a period of 15-16 days and now the bank is back to normal. So if you look for cooperative banks तो ये चीजें नहीं होगी because उसमें limited backing होता है RBI का. But when you look at large banks तो obviously government backing होता है. But at the same time लोगों का ये myth है कि FD में पैसा रखा तो safe है. It's not safe. पहले आरबीआई 1 लाख की गारंटी दे रहा था, अभी येस बैंक और ये सब इशू के बाद उन्होंने वो बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है. इट्स नॉट 5 लाख पर डिपॉजिट, इट्स 5 लाख पर होल्डर. सो अगर आपके 20 भी डिपॉजिट है तो उसमें से एक ही सेफ है. सो ये मिथ अभी तक हम लोग लेके चल रहे थे कि एफडीज आर एब्सोल्युटली सेफ. नो, दे आर नॉट सेफ. दे हैव अ लिमिटेड amount of security, limited amount of backing by Reserve Bank of India. So what do you mean by limited amount of security in FD? Because generally I think हर एक मिडिल क्लास व्यक्ति FD तो जरूर कराता है. मतलब म्यूचुअल फंड तो उसके लिए एकदम नई चीज लगती है लेकिन वो FD जरूर कराता है. और इनफैक्ट मुझे याद है मैंने एक बार ये FD किया था, आई थिंक 1 लाख है उसका, एंड उसका रिटर्न तो बहुत ही कम आया था. मतलब मैंने कहा कि why did I do that in the first place? Exactly. तो जैसे मैंने आपको बताया, you should look for instruments जो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे. Only then you'll be able to make your money grow. It's like you have to question yourself, is your money working as hard as you are working? आप दिन के 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हो, आपका is your money working that hard? That's a question number 1. And limited backing is कि आप FD में limited backing की जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप FD में पैसा डाल रहे हैं तो RBI promises you a certain amount. अगर बैंक डिफंक्ट हो जाता है या बैंक फंक्शन नहीं कर पाता या बैंक कोलैप्स हो जाता है तो RBI gives you a guarantee of certain amount, but not a complete amount is guaranteed. Okay. That means that we have to be very okay. Yeah, someone has plus जैसे questioned. Mukund has just said that, you know, tax deduction is also high. Of course, FD, the returns from FD are taxable. So, I mean, net return अगर आप देखेंगे FD का तो it will work out to be 4.5 to 5%. And inflation itself is high in India. उतना तो अपना inflation ही है. तो आपका 2 लाख रुपए 5 लाख तो हो जाएगा, but उसकी purchasing power उतनी ही रहेगी. So देखिए, if you can see, रिया आहूजा ने भी एक सवाल पूछा है आपसे. How can I get rid of ACE? Do UK? I don't know what. If you can spot her question, how can I? How can I? Yeah, maybe. I think इसको ऐसा रिया, अगर आपको ये लग रहा है कि ये ब्यूटी का कुछ है, so you are on a wrong page. बिल्कुल आपकी ब्यूटी का ध्यान रख रहे हैं, आपके पैसे की ब्यूटी का हम ध्यान रख रहे हैं कि उसको खूबसूरती से आप कहाँ पर सजा के नहीं बल्कि सेव करके रख सकते हैं. So मुकुंद ने एक और बात कही है, the safer the investment, lower the return. Absolutely. So risk reward ratio हमेशा रहेगा. रिस्क ज्यादा, रिवॉर्ड ज्यादा, रिस्क कम, रिवॉर्ड कम. So it's always like that. It's like it's indirectly proportional to each other. Exactly. Okay. थोड़ा बहुत साइंस हमने जोड़ लिया तो Riya is now laughing. Anyway, so if you have any questions, you can ask us. अभी हमारे पास जो questions थे हमने उनके जवाब दिए हैं. ख्याति मशरू वसानी आपको सारे सवालों के जवाब आपको दे रही है और I think बहुत
बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपने समझाया. थैंक यू सो मच रिया. शी इज सेइंग बोथ ऑफ अस आर लुकिंग फॉर यू. ओके, थैंक यू रिया. वो ये होता है मनी विद मैटर. या सो ख्याति, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शायद नहीं आ पाएंगे, कि उनको दे वोंट बी एबल टू कम टू द टर्म्स ऑफ Tarun has asked, will prices of the property go down? Yeah, of course it property prices will go down because people will not be having that kind of money to spend earlier, and even if they have it, abhi tak we all have a lot of uncertainty lined up in future. अभी तक तो we all are still in lockdown kind of a situation. अभी तक पूरी तरीके से lockdown खुला नहीं है, बट उसके बाद भी वी डोंट नो कितने कौन से सेक्टर्स में जॉब लॉसेस होंगे, जॉब कट्स होंगे. सो वी डोंट नो. सो टिल वो कॉन्फिडेंस वापस आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा. एंड आई फील ड्यूरिंग दैट पीरियड द प्रॉपर्टी प्राइसेस विल रिमेन लो, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन एरिया टू एरिया. बहुत सारी एरियाज इंडिया में ऐसे है जहाँ पे डिमांड है और स्पेस ही नहीं है, तो वहां पर रेट्स बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाएंगे. बट जहाँ पर डिमांड भी कम हो जाएगी और स्पेस भी है, वहां पे रेट्स डेफिनेटली विल गो डाउन. अमृत राजपूत, एक तो मैं हमेशा इनको अमृत बोल देती हूँ. सो अमित राजपूत ये कह रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का ट्रस्टवर्दी और नॉट फॉर आवर सेविंग्स और डूइंग एफडी एज दे आर ऑफरिंग हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. So don't go in for that 0.5% higher interest that you are getting. उसकी वजह से आप शायद अपना प्रिंसिपल भी गवा देंगे. If you're going for a FD, go for a normal bank. Best is go for State Bank of India and park your FD, or go for a private bank which has a good RBI backing like ICICI or HDFC or something like that, जहाँ पे आपको पता है कि आपका पैसा सेफ है. So मुकुंद ने एक सवाल ही पूछा है कि we have seen that in retail goods are being sold at MRP like everything. So won't the prices of everything else increase now? I think MRP is like maximum retail price. पहले भी MRP पे ही तो बिकता था सब कुछ. वही तो. हाँ, और ठीक है थोड़ा बहुत बार्गेनिंग हो जाता था, लेकिन I don't know if he is asking for the bulk the bulk that we actually buy for businessmen. Maybe because अगर रिटेल की बात करें, रिटेल but I think पूरा always is going to depend on demand and supply. So अगर आज अपनी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो they'll sell at a higher rate और vice versa. अगर वही कमोडिटी की डिमांड चली गई नीचे तो they'll sell at a lesser prices also. या ट्रू. तो हम लोग पहले हम लोग अमित मुकुंद के आने की वजह से ना, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक पीपल टॉकिंग इन बिटवीन, बट नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कीप आस्किंग क्वेश्चन. सो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी, यही होता है जब दो बड़े बात कर रहे हो ना. No, it's okay. I really enjoyed this interaction. It's very good that you must ask questions. मैं आपसे क्या सवाल पूछने वाली थी. तो सवाल मेरा ये था कि हाँ, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हमने रिटेल की बात, हमने कॉमन मैन की बात करी, हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भी बात की कि कैसे वो सरवाइव कर सकते हैं वो. लेकिन अब सवाल आता है हॉस्पिटैलिटी का. इट्स द मोस्ट यू कैन से ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज्यादा खतरे में है. इनफैक्ट जब निर्मला सीतारमन से नहीं तरुण आपको जिप करने की जरूरत नहीं है, आई वाज जस्ट किडिंग, आई वाज जोकिंग. तो हाँ, मैं कहते हैं निर्मला सीतारमन से जब पीसी में उनसे पूछा गया कि मैम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए आपने क्या सोचा है, तो वहां पे रिप्लाई उनका आया था ठीक है. तो ख्याति क्या सब ठीक है? No, it's not okay. Hospitality sector, travel, tourism and hospitality सबसे ज्यादा impact हुए हैं. And I don't see hospitality sector returning to normal anytime soon. World's largest chain of hotels जो 90 years से present है globally, they have said that it's a worst thing that we have seen. Great Depression के टाइम पे भी हमने ये नहीं देखा था, World War II के टाइम पे भी नहीं देखा था. So it is sad. I mean, and an organization which has been there for 90 years, when they are saying this, it means things are not good. So सब ठीक अभी तो नहीं लग रहा है, but normalcy आने के लिए hospitality में it will take a lot of time.
because people will not do unnecessary travels. Companies will not want their employees to travel. At the same time, now we have seen 2.5 months ho gaye, but companies are still functioning. Technically, there are a lot of people who are working from home. Service industry is operating. So work from home is a better option. They would want to do a lot of cost cutting, cost saving. So I definitely don't see that sector returning to normal anytime soon. It will take time. नेक्स्ट में सवाल पूछा, what should be my ideal mutual fund portfolio look like composition wise? So composition wise, it completely depends on your risk appetite. A certain percentage equity में होना चाहिए, certain debt में होना चाहिए. Equity की अगर हम बात करें, तो certain amount of money should be in large cap, then multi cap, mid cap, and small cap. And if you are a very high risk taker, you can go in for a sector funds, but only if you are a very aggressive risk taker. Okay, so can you explain those caps, because I'm sure बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जो अमित जी, आप पहले सवाल तो पूछे. आपने बोला कि मैंने आपकी मदद नहीं की, पर आपने पहले सवाल भी नहीं पूछा. मैंने जितने भी यहाँ पे सवाल आ रहे हैं मैं उनको लगातार पूछ रही हूँ. अमित जी प्लीज हमें सवाल पूछिए आप. तो हाँ, कैन यू टेल अस, जो आपने कैप्स की बात की म्यूचुअल फंड में. So large caps, you mean to say, should I explain what does this caps mean? Yeah, a little of it, not the entire thing, just a brush up. Yeah. Sure. So large cap would be a very giant companies with huge turnover, more than 1,000 crore. Okay, हर definition आप Google भी करेंगे तो आपको मिल जाएगी, but more than 1,000 crore. और इसमें कुछ giants भी आते हैं. उसके बाद मिड कैप्स आते हैं जहाँ पे लेस देन 1,000 करोड़ होती है. अभी रिसेंटली सेबी ने कुछ क्लासिफिकेशंस चेंज भी किया है लार्ज कैप मिड कैप का. सो मिड साइज, जैसे नेम सजेस्ट दैट इट्स मिड साइज कंपनी, सो इट्स अ मिड कैप. एंड देन स्मॉल, सो वेरी स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन. Okay, so we got it. So Tarun, ये बता कि I have never invested in mutual fund. I guess it's a good time. Any suggestions? I think we have discussed about it only. हाँ. 100% it's a good time. अगर आपका horizon लंबा है, it's a best time to enter. But जैसे मैंने कहा, don't enter at one go. Enter in bits and pieces because there is more pain left. Exactly. अच्छा, एक I think it would be a second last question. Bankruptcy बहुत ज़्यादा डिक्लेयर हो सकती है. मतलब there are a lot of, मतलब high chances, high rate के ऐसा हो सकता है. तो ऐसे में एक अनरेस्ट सा होगा, बहुत ज्यादा जॉब्स जाएंगे या कुछ होगा. तो what are the government schemes that people who will lose the job or something, is there any kind of unemployed sector के लिए कुछ उन्होंने कुछ ऐसा organized कुछ स्कीम निकाली है अभी in present? Nothing that I am aware of. We're living in India. Yeah, because we're not in US where unemployed sector are being registered. Okay, yeah, this is the thing. So, अच्छा, what do you think कि bankruptcy से कितना नुकसान होगा? क्या banks और bankruptcy के बीच का एक relation जरा हमें समझाइए. So banks for sure, एक तो सबसे पहले तो इतना मोरेटोरियम दे रखा है गवर्नमेंट ने 6 months का, उनके वजह से भी बैंक्स को इम्पैक्ट करेगा. बहुत सारे उनके जो एसेट्स है वो एनपीए में टर्न आउट हो जाएंगे, पर वो जल्दी से नहीं होंगे बिकॉज एज पर द रीसेंट गवर्नमेंट नॉर्म्स वो भी पीरियड बढ़ा दिया गया है एनपीए डिक्लेयर करने का. सो इंस्टेंट नहीं होगा, बट आगे चल के आई नो फॉर श्योर दैट देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस व्हिच आर गोना फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन सर्वाइविंग. तो बैंकरप्सी रिलेटेड इश्यूज आएंगे, बैंक्स के एनपीएस भी बढ़ेंगे. सो द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोविड ग्लोबली are going to be a little more something that you and me can't really specify it right now. Yeah, we cannot predict it, but yes, it is going to be, there's more pain left, as I said. So अगर मोटा मोटा लेके चले, ये सब चीजें होंगी, जॉब जाएंगी, आगे का जो पोस्ट कोरोना है ये सब चीजें होने वाली हैं, तो should one, अगर एक लाइन में पूछे, should one trust on banks? Yeah, but then again depends which bank. So if you're going for something like a State Bank of India, HDFC Bank, or banks with a very solid, which are governed by RBI, it will have to support. Because banking is the backbone of the economy. So government will have to come up with few things that can support them, It can't just let these large banks go
defunct. So it has to So support. is merger of banks is a good option, because abhi hum in this time of Indian economy, even before the coronavirus, there were few discussions in the economic aisles that there will be some merges of the banks. You think that merging of bank एक अच्छा It option is है? good option because government, because अगर आप कोई भी different economy में देखेंगे ना, see India में ही ऐसा है जहाँ पे government is also into lot of businesses. Example railways, banking, insurance. But अगर आप दूसरी countries में देखेंगे तो government का काम है सिर्फ देश को चलाना. They are not into any businesses. So India is also getting into that mode where we are getting into diversification. You know that we just want to divest. So in a way, it's a good thing from a government perspective. It's a good thing. Okay. And from a So public perspective also. okay. So we'll take the last question, which has said कि are debt funds better than FD? Debt funds are better than FD, but of course you need to understand the risks associated with debt fund. Even in terms of taxation, they offer better tax benefits and tax breaks than FDs. Okay. Sorry, we have to take just one last question. एक person ने पूछा, what is the future of Yes Bank according to you? Yes Bank will take a lot of time to come back to normal, but RBI of course stepped in and they supported Yes Bank to just stand back on its own feet. So it will take time, but I don't really see any harm in staying, having your accounts with that bank or something like that. But if you have huge investments with the bank, it's better that you diversify just for a safety purpose. So it's better to diversify. It's better to connect. हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े, thank you so much. And Khyati Mashru Vasani is a chartered wealth manager, founder and chief financial coach from Plant Rich and Vama Plant Rich LLP. So अगर आपको वैसे भी उनसे कोई भी राय लेनी है या उनसे जुड़ना है, तो you can connect with her on Instagram at Khyati.Mashru, KHYATI.MSMASHRU Mashru, and आप उनको Facebook पे भी ढूंढ सकते हैं ख्याति मशरू वसानी के नाम से. And try to connect with such people who can give you some real and realistic advice on finance, because देखिए पैसा है तो सब कुछ है, और आई नो इस टाइम पे बहुत सिचुएशंस ऐसी है, बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन है. सो यू हैव टू बैंक अपॉन दोज पीपल whom you can actually trust. तो एक कनेक्शन हमने कोशिश की आपको देने की ख्याति मशरू वसानी की. सो आई होप दैट शी वाज ऑफ सम हेल्प टू यू, एंड यू कैन कनेक्ट विद हर ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, एंड यू कैन शेयर योर क्वेरीज इवन ऑन ट्विटर ऑल्सो. सो थैंक यू ख्याति मशरू, आपने बहुत अच्छे से इस सेशन को होल्ड किया. आवर व्यूअर्स ऑल्सो हैड वेरी गुड क्वेश्चंस टू आस्क, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर कनेक्टिंग विद अस. Thank you, Suryanshi. Yeah, take care. Bye. Okay, bye.